everyone's on LinkedIn is getting promoted. Meanwhile, you are trying to figure out if you should do an MBA, move to the mountains, or start a YouTube channel. Hello everyone, welcome to another episode of Spill the Raita. This is Mitali and with me I have Palak. And in today's episode we are talking about career dilemma. तो दीदी कैसे स्टार्ट करने वाले हैं आज का हम टॉपिक? So Mitali, I'm going to ask you what you wanted to become when you were young or when you were studying in school. Okay. So I'll tell you a small story. So when I was in school and जब हमारे कोई भी substitute जो teacher होते थे या फिर college में कभी कोई professor आते थे in the absence of the regular subject teacher, they would usually ask us कि okay fine, tell us about yourself, just to like engage the class and just to have an interactive session for those 30-40 minutes. So जब भी मेरे से ये कोई पूछता था और इन जनरल हमारी क्लास में किसी से भी ये पूछता था, आज मैंने अगर डॉक्टर बोला है मुझे बनना है, मैं नेक्स्ट क्लास में बोलूंगी कि मुझे इंजीनियर बनना है, नेक्स्ट क्लास में बोलूंगी आई वांट टू बी अ ट्रैवलर, उसके नेक्स्ट क्लास आई विल से आई वांट टू बी एन एक्ट्रेस. ऐसे ऐसे इट विल डिपेंड ऑन विच मूवी और विच कैरेक्टर और व्हाट स्टोरी हैज हैपेंड आगे पीछे इन दैट वीक, so that I will answer my question accordingly. So over the years from the very beginning मैंने भी अलग answers दिए हैं, but at present I am working with a skill developmental organization which is based out of Hyderabad. We are teaching and empowering thousands of women from all across the country regarding their skills. हर दिन हम किसी को कोई ना कोई skill सिखाते हैं and it feels very nice. So that is what I am doing lately. But recently, but pehle, I have gone from being a doctor to being an engineer to being something to being another thing. So everything I have told everyone. Coming to you, what about you? So when I was in my 4th standard, I wanted to become an actress. And even till the 10th standard, वो मेरा एक दिमाग से गया नहीं था कि मुझे acting pursue करनी है. And I even tried a bit. मतलब I started doing fashion shows and मैं behind the scenes में shooting sets पे मैं जाती थी. I used to observe कि कैसे actor actresses कर रहे हैं. I was there like behind the scene. तो काफी कुछ एक्सपीरियंस करने की कोशिश करी. एट द सेम टाइम मैं पढ़ाई में बहुत ज्यादा एनग्रॉस थी, मुझे बहुत पढ़ने का बहुत शौक था. सो माय पेरेंट्स वर लाइक या पढ़ाई में अच्छे हो तो कुछ पढ़ाई में ही एकेडमिक्स में ही आप परस्यू करो. एंड देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स. आई ट्राइड फॉर कपल ऑफ देम लाइक फ्रॉम स्टेट लेवल टू यूपीएससी एंड एवरी अदर एग्जाम, बट आई कुडंट मेक इट. बट मुझे बाद में और रियलाइज हुआ कि चलो कंटेंट राइटिंग में मैं काफी अच्छी हूँ, तो लेट्स परस्यू समथिंग इन राइटिंग एंड कम्युनिकेशंस, एंड आई स्टार्टेड डूइंग इट. Then last year I quit my job and this year I started my content creation journey on Instagram, and this podcast is also a big part of my journey. So I think I'm happy क्योंकि finally in this year मैंने वो cycle break करके I ventured out. I tried to do something different which is little bit unconventional and not really acceptable to the society कि और क्या करते हो, अच्छा ये तो ठीक है, ये तो हॉबी है, और क्या करते हो. But it is really close to my heart. I'm working as a brand manager in the hospitality, but at the same time I'm pursuing my other interest and I feel कि life is too short. आपको जो भी मन है करने का एक बार you should give it a shot. मतलब हमेशा self doubt में आप रहेंगे कि ये होगा कि नहीं होगा, whether you should do it or not. मैं audience को भी ये कहना चाहूंगी कि अगर छोटी सी भी अगर आपकी कोई हॉबी है, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो सिंगिंग हो, तो अपनी जॉब के साथ वो आप जरूर से परस्यू करें. इट विल कीप यू एनर्जेटिक, इट विल कीप यू हैप्पी, इट विल कीप अ सोल हैप्पी. ये मैंने एक्सपीरियंस किया है बिकॉज एज अ मोटिवेशनल फैक्टर जो आपका 9 to 5 है उसमें, क्योंकि जो 9 to 5 होता है उसमें फॉर पीपल लाइक अस वी हैव डिफरेंट आइडियाज, डिफरेंट कैंपेन्स टू वर्क अराउंड. बट देयर आर आल्सो पीपल जो हमारे ऑडियंस में शायद हमें सुन रहे होंगे, देयर माइट बी पीपल जिनका काम एकदम सेम है. Daily, every day you have to do the same thing. Every day you have to work with a particular data, or every day you have to interact with certain people only. For those people, having such a hobby, such kind of hobby, जो उनको हेल्प करे, उनको आगे लेके जाए, जो उनका 9 to 5 है उसमें, I think that is a very great suggestion from your side.
Thank you. I wanted to ask you कि how has your experience been as a Gen Z? जैसे मैं तो एक millennial हूँ, so I wanted to know from you कि how have you navigated the job market? How has like your experience been looking out for jobs, and are you happy with your profession? So, I have studied journalism. I have done diploma in international humanitarian law. I have done masters in rural development. I'm planning to pursue further. And एक चीज मैंने देखी है where I am right now and with the people I interact every day, it is very लेस परसेंटेज आई कैन से जिन्होंने वो पर्टिकुलर फील्ड पढ़ा है और वो उसी में आगे कुछ काम कर रहे हैं. I have seen people switching and hopping from one profession to another, and it feels very nice. Even I have interacted with content writers who have had background from engineering, but because वो engineering जो कर रहे थे, they were doing just because their family wanted them to pursue, but उनका actual goal was content writing. I have seen, so in my generation, I feel people are studying जो उनके घर वाले उनको चाहते हैं कि वो पढ़े, बट जो उनका डीप डाउन हॉबी था या इंटरेस्ट था, दैट इज व्हाट दे आर टेकिंग अहेड as their passion, as their 9 to 5, I can say. So, talking about myself, I am someone who likes interacting with people, who likes traveling. So, I am in a profession where I interact with so many people every day from different demographics and geographic areas that I really like it. I like helping people. जैसे मैंने बताया कि we are in skill developmental organization जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ. So every day I come across thousands of hundreds of stories of people who have studied with us. How one particular skill जैसे आपने अभी mention किया जो अपने खुशी के लिए हम करते हैं. These people every day are using those skills to like lift themselves up. या तो उनको कुछ financial issues है या they just want to be happy. They just want to pursue something that they left behind long back because of the responsibilities जो उनके family ने उन्हें दिए. So to empower such people, I really like it. हाँ, there are challenges, there are difficulties some days, but at the end when I come back and when I am sleeping, I know कि today I have helped someone learn. So that feeling So is that's very really nice. great to exactly that's really great to hear that आप दूसरों की लाइफ भी सुधारने में हेल्प कर रहे हो. यू आर मेकिंग देम हैप्पी, यू आर गिविंग देम विंग्स टू फ्लाई, यू नो बेसिकली. Yeah. सो ये काफी ही अच्छी फीलिंग है दैट यू आर नॉट डूइंग इट जस्ट फॉर योरसेल्फ, बट व्हाट यू आर डूइंग इज आल्सो बेनिफिटिंग अदर्स. तो ये ऐसे प्रोफेशंस काफी फ्रूटफुल होते हैं एंड एक मन भी खुश रहता है बिकॉज यू नो आई रिमेम्बर वंस माय मैनेजर टोल्ड मी कि पलक यू शुड बी हैप्पी विथ योर वर्क, यू शुड लव व्हाट यू डू. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक कभी भी काम ऐसा बर्डन नहीं लगना चाहिए कि मुझे करना पड़ रहा है, या लाइक देयर आर सम पीपल हु गेट कॉट अप इन ऑफिस पॉलिटिक्स और वो परेशान हो जाते हैं. देयर इज समथिंग कॉल्ड वर्क प्लेस टॉक्सिसिटी ऑल्सो. हम आगे के एपिसोड में डिस्कस करेंगे कि कैसे उससे हम टैकल कर सकते हैं. या इनफैक्ट जब हम लोग लोगों से ऐसे इंटरेक्ट करते हैं और बात करते हैं और वो ऐसे चीजें बताते रहते हैं, आई फील कि इट इज नॉट जस्ट अस. जैसे आपने बताया कि ऑफिस के जो पॉलिटिक्स होते हैं समथिंग, आई फील पीपल ट्राई टू फिट इन टू मच बिकॉज जो उनका पुराना बैकग्राउंड है दैट इज डिफरेंट एंड नाउ दे आर एक्सप्लोरिंग सो मच, तो वो फिट इन के चक्कर में. एंड बिकॉज वी ऑल्सो सी अगर कुछ यंग कॉम्पिटेटिव इंसान आया है हु इज hungry to learn new things, we take it, अरे यार इसको नहीं सिखाना है, ये हमारी नौकरी खतरे में डाल देगा या इससे थोड़ा दूर रहना है. सो वी ट्राई टू लाइक पुश दैट पर्सन डाउन कि तुमको तो आता ही नहीं है, तुमको तो आता ही नहीं है. उस चक्कर में सामने वाले का कॉन्फिडेंस जो इतना होता है, इट गोज समवेयर वेरी डाउन बिलो. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर मोटिवेटेड एंड you don't have to. Nowadays I feel people are running after money. Yes, money is very important, money is very necessary, और पैसे कमाना बहुत मुश्किल होता है. पर अगर आपको पैसे और खुशी में कुछ चूज करना है, आई वुड से वन शुड गो फॉर हैप्पीनेस. So पैसा yeah, खुद ब that खुद is why it is said कि money cannot buy happiness. ये sayings क्यों बनी है? मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि everyone who is working is not happy with their jobs, but I have this feeling कि there are many people जिन्होंने अपने मन में कुछ छुपा के रखा है. They have that hidden talent inside of them, but
उसको परस्यू नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि टाइम अलाउ नहीं कर रहा है, टाइम कंस्ट्रेंट्स है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत सी चीजें हैं। तो उस वजह से लोग अपना खुद का पैशन परस्यू नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे देयर इज अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ड्रीम्स एंड डिसीजंस, पैशन और मनी। सो यू नो देयर वेरी फ्यू पीपल जो कि अपने पैशन के थ्रू मनी जनरेट कर रहे हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल समबडी हु वाज अ सिंगर और इन एनी अदर आर्टिस्टिक प्रोफेशन। सो ये सोसाइटी के लिए काफी इनिशियली एक है ना अनएक्सेप्टेबल हो जाता है कि अरे कितना ही कमा लेते होगे, सिंगिंग में क्या है, एक्टिंग में क्या है, पेंटिंग में क्या है। अगर ऐसा होता तो ये करियर ही एग्जिस्ट नहीं करते भाई। अगर ऐसा होता तो सोनू निगम नहीं होता, ऐसा होता तो कोई एक अच्छे डांसर्स हमारे यहाँ नहीं आए होते। तो ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुद पे विश्वास किया, जिन्होंने सोचा। उनको भी जब आई एम प्रीटी मच श्योर, मतलब ऑफ कोर्स मतलब दे वर मे बी बोर्न विद सम टैलेंट, बट उनका भी एक टाइम आया होगा कि एक एजुकेशन अपनी कंप्लीट करी होगी, एक सोचा होगा कि चलो हम भी बाकी लोगों की तरह जॉब करते हैं। बट नहीं, उन्होंने सोचा कि नहीं, हम हमारे अंदर ये टैलेंट है, इसको हम निखारते हैं, इसको हम परस्यू करते हैं। एंड दैट इज व्हेन their parents also might have supported them, and then they became successful world famous singers. Yeah, Abhi, I'll tell you an episode. Today itself, I went to a school जहाँ पे एक orientation हो रहा था, workshop हो रही थी. We were talking about their career opportunities. जहाँ पे उनकी जो principal है, she said something very nice. She said, if you want your child to succeed, there are 3 pillars that are required. 3 लोगों का काम करना बहुत जरूरी है ताकि आपका बच्चा आगे बढ़ सके, कुछ बन सके. One is the teacher. The second are the parents, and third is the child itself. तो it is very important कि जो ये तीनों चीजें हैं at a very ground level. बड़े होके तो हाँ, जब हम 18 years के हो जाते हैं, जब हम कॉलेज चले जाते हैं, we are on our own, we just have our friends जिनसे हम रोज कॉलेज में मिलते हैं, पेरेंट्स से भी कम बात होने लग जाती है. So it is very important at the ground level. जब हम स्कूल में होते हैं, उस टाइम पे we are not given an option कि भाई तुम्हारे लिए प्रोफेशन बस डॉक्टर है, तुम्हारे लिए बस इंजीनियरिंग एक प्रोफेशन है. उन लोगों को बड़ा हॉराइजन दिखाना चाहिए. वी शुड शो देम अ बिगर पिक्चर. इफ वी शुड गिव देम, वी शुड टीच देम कि अगर आपका प्लान ए हो सकता है आप डॉक्टर बनो, बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु अप्लाई, उनका क्वालिफाई नहीं होता है, दे टेक ड्रॉप और ड्रॉप ईयर ले लेते हैं या फिर कुछ और पढ़ने लगते. यू शुड ऑलवेज हैव अ प्लान बी. वो प्लान भी आप अपने इंटरेस्ट या अपने जो स्किल्स है उससे रिलेटेड आप ले सकते हो, सो दैट यू आर हैप्पी. कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब प्लान बी वाली बात जो आपने अभी कही, कि अपन फिर क्या करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मेरा प्लान ए यूपीएससी है और प्लान बी मेरा कंटेंट राइटिंग है। तो क्या होता है कि मेरे साथ स्पेशली ऐसा हुआ कि इवेंचुअली आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन प्लान बी ओनली। एक वो हो गया कि मैं आई फॉरगॉट माय प्लान ए। मतलब कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि दिस शुड नॉट बी एनी प्लान बी, कि आप एक ही चीज पे फोकस करो। बट यू नो देयर इज ऑलवेज दैट फियर ऑफ फेलियर, स्पेशली इन गवर्नमेंट एग्जाम्स। मतलब कोई आपकी इतना लेस परसेंटेज ऑफ पासिंग है कि लोगों के मन में डर भी रहता है कि यार क्योंकि टाइम तो निकल रहा है। देखो लाइक देयर मेनी यूपीएससी एस्पिरेंट्स जिन्होंने 3-3 साल पढ़ाई करी, उन्होंने जॉब नहीं करी बिकॉज मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता, बिकॉज व्हेन दे आर वर्किंग दे फील कि हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। जब वो सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं तो वो देखते हैं कि यार एवरीवन अराउंड मी इज वर्किंग, एवरीवन इज अर्निंग मनी, क्लाइंबिंग अप द लैडर, और मैं सिर्फ बैठ के यहाँ पढ़ रही हूँ। आई थिंक मिताली यू हैव बीन देयर एंड आई हैव ऑल्सो बीन देयर, बट थैंक्स टू माई मदर, उन्होंने मुझे हमेशा एक ये सजेस्ट किया कि यू शुड अर्न as well as you can study simultaneously because it's a better approach. ठीक है, it's all about time management. आपको ऐसा लगता है कि मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ, सो वही मैं कहना चाह रही हूँ कि कहीं ना कहीं एक है ना इन प्रोफेशंस के साथ एक मेंटल स्ट्रेस भी आता है। तो आपको ये भी समझने की जरूरत है कि आर यू मेंट फॉर इट और नॉट। लाइक फॉर एग्जांपल somebody who wants to become a doctor has never experienced like you know standing in an OPD की how it feels to perform surgeries. Do you have that fear of blood or something, और या आप फैसिनेटेड हो उस चीज से कि यार मेरे को डॉक्टर बनना है, मतलब मुझे ये बनना है। मतलब वो खूबी, वो पेशेंस, वो क्वालिटी आप में है कि नहीं है, वो भी जानना बहुत जरूरी है। एंड यू हैव टू बी प्रैक्टिकल ऑल्सो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आई फील। Yeah, your heart and mind should be there where you are working. ऐसा नहीं है कि just for
the sake of it you are working. जैसे आपने बताया आप डॉक्टर अगर बनना चाहते हैं, and we don't want to offend any of the doctors who are watching us right now. We just want to make sure कि जब आप जो प्रोफेशन ले रहे हो, you should be happy in what we are doing. अभी she is she is as a brand manager of the hospitality field में है. I am working towards upliftment and skill development. This is not the end. This is not where we stop. We want to do something else also. We want to test the waters. We want to see कि हम कहाँ Exactly. तक जा. यस यस एंड वही मैं ऑडियंस को ये भी कहना चाहूंगी कि डोंट फेयर स्विचिंग इंडस्ट्रीज. लोगों को लगता है कि यार मेरा तो अब इसी में है. अब लाइक आई हैव सीन पीपल लाइक यू आल्सो मेंशन्ड कि उन्होंने डिग्री किसी और में करी है, परस्यू कुछ और कर रहे हैं. आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम इन इट. लाइक वन ऑफ माय कजन, शी हैज डन हर इंजीनियरिंग बट शी इज इनटू फुल टाइम मार्केटिंग जॉब एंड शी इज हैप्पी डूइंग इट. तो मुझे नहीं लगता कि कोई इशू है इसमें. लाइक आई हैव स्टडीड मास्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड मेरे बैच के बहुत ही कुछ लोग हैं जो इस फील्ड में एक्चुअली काम कर रहे हैं एंड रेस्ट ऑफ देम हैव दे जस्ट दे हैव चोजन डिफरेंट फील्ड्स एंड दैट्स कंप्लीटली ओके. तो कभी भी खुद को यू रेस्ट्रिक्ट मत करो कि यार मैंने तो ये पढ़ाई करी, अब मुझे यही जॉब करनी पड़ेगी, या मेरा तो एक्सपीरियंस इसमें है तो अब मैं स्विच नहीं करूंगी. इट इज पॉसिबल टू स्विच, क्योंकि क्या होता है कि जो आप आज हो वो आप 5 साल पहले नहीं थे और आप 5 साल बाद भी नहीं हो गए. वी आर ह्यूमंस, वी आर इवॉल्विंग, राइट. हमारा कभी भी एक ही इंटरेस्ट नहीं रहेगा. जॉब मार्केट बदल रहा है, कंपटीशन भी काफी हर जगह हो गया है. सो मतलब छोटी मोटी चीजें हैं. मैं यही ऑडियंस को बोलूंगी कि आप डरो मत, बिकॉज वी ऑलवेज हैव दैट फियर ऑफ जजमेंट कि लोग क्या बोलेंगे. अरे तू तो ये कर रही थी तो क्या हुआ, क्लियर नहीं हुआ कि एग्जाम. द सोसाइटी ऑलवेज हैज अ वे टू criticize you कि क्या हुआ, तुम तो बड़ा ये करने वाले थे. So we should not pay heed to such people. To add here, they criticize here is because they see कि अरे जब हम इस पोजीशन में थे तब हमने तो ये सब नहीं किया, अभी ये इंसान कैसे कर रहा है. So we can say they are also jealous of you. They are jealous of your capability. They could not do it, so they don't want you to go ahead, and that is very common. We all of us have heard the stories of Indian crabs कि किसी को भी हम बाहर नहीं निकलने देते, वो खींचते उस टोकरी में ही रहते हैं, तभी किसी को भी खतरा नहीं होता है कि वो बाहर चले जाएंगे. सेम वे दे डोंट वांट अस टू कम आउट ऑफ द लूप जो चल रहा है, जो जिंदगी भर उन लोगों ने बाकी लोगों ने किया. एंड दैट इज व्हाई दे कीप saying such things and like start demotivating us or something like that. We should not pay attention to such things. In fact, we should explore. जो कर सकते हो, जहाँ से कर सकते हो. हाँ ठीक है, you will fail in one activity, you might fail in another, but there might be something, some particular skill or some particular activity where you will find that kick, and with the help of that you can be like this, I am waiting for this particular hour कि 5 कब बजेंगे तो मैं अपने घर जाऊंगी और फिर मैं ये एक्टिविटी कर सकती हूँ. So we have to, everyone has to look forward for that particular one thing in the day जहाँ पे they feel themselves. जैसे आपने बताया, it is very important. Otherwise we will forget ourselves, because I am born differently, you are born differently. That concept of inclusive growth जो आजकल हमारी education policy में चल रहा है, we have, just because we are not in school anymore, we are not in college, does not mean we cannot put in our life now. हम उसको अपना सकते हैं. आप अभी भी कुछ कर सकते हो. Exactly. और आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऐड कि नेवर टेल योर प्लान्स टू पीपल कि मेरे को ये बनना है, मुझे ये परस्यू करना है. यू शुड नो, योर पेरेंट्स शुड नो, बिकॉज वो कहते हैं ना कि आउटसाइड एनर्जी कैन थ्रो ऑफ गोल्स. मैं बहुत बिलीव करती हूँ सेइंग में कि इफ यू टेल पीपल कि मैं तो ये कर लूंगी, उसके बाद मैं ये करूंगी, यू डोंट नीड टू, बिकॉज आप अपने लाइफ पाथ आप किसी को क्यों बता रहे हो कि आपको कहाँ जाना है, आपको क्या अचीव करना है. अगर आप कर लोगे द वर्ल्ड विल सी, बट आप पहले से डिस्क्लोज मत करो कुछ. और दूसरा ये है कि आज का जो जॉब मार्केट है, मैं ऑडियंस को ये सजेस्ट करूंगी कि मोर देन एक्यूमुलेटिंग डिग्रीज एंड कोर्सेज, आप स्किल्स पे काम कीजिए. क्योंकि अब क्या हो गया है कि जो डिग्री है वो सिर्फ एलिजिबिलिटी के लिए रह गई है, और कंपनीज आर हायरिंग मोर बेस्ड ऑन स्किल्स, दैट व्हाट यू कैन ब्रिंग टू द टेबल. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको कोई टेक्निकल स्किल्स आती है, आपको एसक्यूएल आता है, आपको पाइथन आता है, अगर वो आपके जॉब एरिया, आपके फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में फॉल करता है तो
तो जो भी आपकी फील्ड है, मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप स्किल डेवलपमेंट में से, मिताली इज इन स्किल डेवलपमेंट, बट आई एम टॉकिंग अबाउट डिफरेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट स्किल सेट्स, कि आपको आपके फील्ड के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या कुछ टूल्स आपको यूज करना आना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं कम्युनिकेशन में हूँ तो मुझे थोड़ा सा कैनवा का नॉलेज होना चाहिए, या कोई वीडियो एडिटिंग में है तो आप सिर्फ कोर्स से काम नहीं चलेगा, आप है ना स्किल सेट्स पे वर्क कीजिए। होना चाहिए आपको उसका। एग्जैक्टली, बिकॉज जॉब मार्केट इज बिकम वेरी कॉम्पिटिटिव, फिर लोग डिप्रेस हो जाते हैं, लाइक यू नो, अगर इफ दे आर नॉट हैप्पी विद देयर जॉब्स, और अनएम्प्लॉयमेंट भी इज एट इट्स पीक, इतने ले ऑफ्स हो रहे हैं, एवरीवन नोज, और काफी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो गई है, पॉपुलेशन इंडिया में इतनी ज्यादा है, हमको सबको पता है कि इट इज नॉट अ केक वॉक एनी मोर कि यू वॉक आउट ऑफ IIM एंड यू गेट अ जॉब। अब तो क्या है कि पैकेजेस भी थोड़े से कम होने लग गए हैं, स्टार्टिंग पैकेज जो लोगों को मिल रहे हैं, सो यू नो लाइक पीपल आर टेकन अबैक, स्टूडेंट्स आर टेकन अबैक कि यार हमने इतना खर्चा करके वी गॉट थ्रू, क्योंकि IIM में भी एडमिशन इजी नहीं है, IIT IIMs यू नो कि दीज आर बिग कॉलेजेस, दीज आर ब्रांड्स, तो यहाँ पे भी एडमिशन लेना आसान नहीं है, यू हैव टू गो थ्रू मल्टीपल राउंड्स, दैट इज व्हेन यू गेट सिलेक्टेड। सो यही है कि ये सारी चीजें काफी लोगों को, स्टूडेंट्स को एक मेंटल स्ट्रेस दे देती है, और सोसाइटी भी काफी, अरे क्या करोगे, अरे यू आर अनएम्प्लॉयड। सो आई थिंक ऑन दैट नोट आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऐड कि इट इज ओके टू टेक अ ब्रेक। मतलब लोगों के मन में डर बैठ गया है कि अरे जॉब छोड़ दूंगी तो क्या होगा। आई मीन ठीक है, मतलब आई अंडरस्टैंड द सिचुएशन कैन बी स्ट्रेसफुल, बट इफ यू वांट टू टेक अ ब्रेक यू शुड नॉट स्टॉप योरसेल्फ। लाइक आई हैव सीन पीपल 4-5 मंथ्स का ब्रेक लेके दे फील रेजुविनेटेड एंड दे कम बैक स्ट्रॉन्गर, उनको एक नया जॉब, एक नया पर्सनालिटी के साथ वो वापस वर्क प्लेस पे आते हैं, कुछ नया ज्वाइन करते हैं। तो ये भी मैं सजेस्ट करना चाहूंगी ऑडियंस को। Okay. Yeah, that is a wonderful वी आर इवॉल्विंग, सो यू नो आप अपना करियर कैसे चूज करें, ये है कि मिताली, हाउ डू यू फील दैट हम कैसे अपना एक करियर चूज करने के लिए, व्हाट शुड बी द पैरामीटर्स, हम कैसे सोचें कि हमारे लिए बेस्ट प्रोफेशन क्या होगा, या ट्रू कॉलिंग, हाउ टू फाइंड अ ट्रू कॉलिंग, बिकॉज आई नोटिस कि पीपल हु हैव इवन क्रॉस देयर 30s दे स्टिल आर नॉट एबल टू मेक आउट कि हम किसके लिए बने हैं, हमारी ट्रू कॉलिंग क्या है। सो व्हाट यू हैव टू से ऑन दिस? I feel people get confused कि जो उनका इंटरेस्ट है और उनका क्या पैशन है। It is important for people to figure out कि वो किस में actually interested है। जो आपकी हॉबी है, I would suggest अगर आप उसे ही अपना पैशन बनाए, because it will be something that you enjoy doing। तो अगर उसी को आप समझ लीजिए, जो आप चीज 1 घंटा 2 घंटा एंजॉय करते हैं, अगर आपको वो डेली करने को मिल रहा है and you are getting paid to do it, and plus you will be able to do it for more hours, why not to go for something like that? One should always go for something they have interest in, जो उनकी हॉबी है उसको आगे परस्यू करने के लिए ले जाए। सो यू शुड लुक विद इन योरसेल्फ कि आपको किस में इंटरेस्ट है। जैसे मुझे बात करने में अच्छा लगता है, या आपको लिखने में ज्यादा मजा आता है, सो वी हैव टेकन वन स्टेप टुवर्ड्स फाइंडिंग अ परफेक्ट जॉब। यू शुड लेट योरसेल्फ एक्सप्लोर। अगर आपने अपने आप को एक जगह रिस्ट्रिक्ट करके रखा है, डोंट डू दैट। अगर आप एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, आप ट्राई करिए कि दूसरे डिपार्टमेंट में क्या होता है, सीखो उसके बारे में, मे बी जस्ट रीड द KRAs। क्या पता आपका कुछ इंटरेस्टिंग पैरामीटर्स हो जो आपको अच्छे लग रहे हो, उसको आप आगे लेके जा सकते हैं। एंड मे बी यू कैन आस्क फॉर स्विच इन द डिपार्टमेंट। पीपल आजकल तो बहुत सारी कंपनीज है, दे लेट यू स्विच, सो दे कीप होल्ड ऑन द रिटेंशन एंड ऑल्सो यू कैन एक्सप्लोर। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिससे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। यू कैन टॉक टू पीपल। You should not feel ashamed in telling people that you are not happy with your job, because I feel no one is happy. They are just doing it क्योंकि उनको पता है कि उन्हें पैसे चाहिए, because that आदत हो जाती है, एक लत हो जाती है हमें इंडिपेंडेंट होने की। To come back to being dependent, it is a very big gap that they have to fill. So they keep doing the same thing again and again and again and again, जिसकी वजह से they get depressed. We don't see enthusiasm in their work. We don't see interest in their work. We don't see them joyful when they are working. So I feel these are small things that they should work on, and that is how they will find it out. I am not a perfect person to like tell about it or guide people, because I am still finding my true calling. So yeah.
मैं थोड़ा-सा यहाँ पे थोड़ा-सा डिफ़र करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज़ यू मेंशन्ड कि लोगों को लत लग जाती है पैसों की, बट आई थिंक वो दैट इज़ मोर आउट ऑफ फ़ोर्स, मतलब दे आर फ़ोर्स्ड टू, बिकॉज़ कभी-कभी यू आर द ओनली सोल मेंबर, लाइक यू आर द अर्निंग इन द फैमिली। सो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफ़िल करने के लिए, है ना? आप उसी पाथ पे चल लेते हैं, एंड यू नो यू कैन नॉट क्विट दैट जॉब, बिकॉज़ आप अगर क्विट करेंगे यू वोंट हैव फाइनेंशियल सिक्योरिटी, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, है ना? तो ये सारी चीज़ें भी मुझे लगता है कि अ, मैटर करती है। और दूसरा ये कि सिंस आई आस्क्ड दैट क्वेश्चन, मुझे लगता है कि लोगों को खुद का स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए, मतलब आप एक सेल्फ टॉक करो। मैं क्या करती हूँ ना, मैं सेल्फ टॉक करती हूँ। मैं खुद से पूछती हूँ कि ओके पलक, व्हाट डू यू वांट? बिकॉज़ इफ यू कीप आस्किंग अदर पीपल कि मुझे क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है मुझे लगता है। बिकॉज़ व्हेन आई वाज़ लाइक 5 इयर्स बैक में की बात कर रही हूँ मैं लोगों से पूछा करती थी कि मैं क्या करूँ? That is a Yeah. wrong question actually. And even if you see, there are career counselors, you go to a career counselor, or even if you ask your parents कि यार आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए, because there are some people who are confused, they are not able to decide, and that's completely okay. ऐसा नहीं है कि आप capable नहीं हो decisions लेने के, but आप confused हो because you have multiple interests, आपको लगता है मैं ये करूँ कि मैं ये करूँ, scope किस में ज़्यादा है। So ये सारी चीज़ें हैं I think। एंड सो अपना करियर चूज करना है, अपनी ट्रू कॉलिंग आपको पता लगानी है, तो उसके लिए यू हैव टू, आपको खुद से बात करनी है। वो जवाब आपके पास है, आप लोगों की सुनो, पर जरूरी नहीं है वो जो बोल रहा है वही करो। इवन इफ यू गो टू अ करियर काउंसलर एंड इफ दे से कि आप लॉ कर लो, बट इट डजंट मीन कि आप आंख बंद करके लॉ कर लोगे। Yeah. आपको भी पता होना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट है कि नहीं, नॉट बिकॉज यार उसने तो ये बोला था, या आई वाज सजेस्टेड, आई वाज एडवाइज्ड टू डू दिस। तो कोई टीचर, कोई काउंसलर, दे कैन बी सपोर्टर्स, बट एट द एंड ऑफ द डे द डिसीजन इज योर्स एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, क्योंकि लाइफ आपकी है। कल को आप उस प्रोफेशन में खुश नहीं होगे, फिर आप बोलोगे यार गलत डिसीजन ले लिया, मेरे को ये नहीं करना था, मुझे वो करना था। तो मैं यही ऑडियंस को सजेस्ट करूंगी कि आप खुद से बात कीजिए, आप जर्नलिंग कीजिए, आप नोट डाउन कीजिए, आप अपने मल्टीपल जो भी इंटरेस्ट है आप लिखिए, आप देखिए कि उसमें क्या स्कोप है, मैं किस में जा सकती हूँ, क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है, मेरे सर्कमस्टांसेस क्या है, सिचुएशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप ऐड कीजिए। Yeah. I think with this we will conclude today's episode. हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया है आज के एपिसोड में, and we hope it was useful to you. आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं आपको आज का एपिसोड कैसा लगा है। If you have any suggestions or feedback for us, please let us know. We are trying something new here, so we will be very happy to know आप लोगों को ये कैसा लग रहा है. So keep interacting with us in our comment section, and hope to see you soon in our very next episode too. And we hope कि आपका जितना भी इंटरेस्ट, जो भी आपका इंटरेस्ट है, जो भी आपका पैशन है, आप उसे फॉलो करें. That was our little try here in this episode to motivate you to go towards it. With this, we would like to call it off. Thank you so much everyone for joining today. Please press the bell icon so that next time when you come on YouTube or whenever we post the next podcast, you are the first ones to know about it. And do share, do support. And thank you so much for joining Thank you today. everyone, thank you, bye.